एवरीवन। आज हमारे पास हैं परनीत कौर, जिन्होंने 89 आउट ऑफ 90 स्कोर किया है पीटी एकेडमिक में, which is equivalent to 9 bands of IELTS. Let's talk to Parneet and ask her about her paper and her preparation. Parneet, tell us something about yourself. So my name is Parneet Kaur. I belong to Amritsar and I have recently completed my senior secondary from MKD DAV Public School. After that, I joined Webbers for my PT academic. So Parneet, why did you choose Webbers? What was the reason for choosing Webbers? So I asked a few of my friends and they recommended me that Webbers provide very good services. So do you think our services were good? Yes, sir. So are you satisfied? Satisfied, sir. Let us talk about your examination now. So Parneet, you gave your examination on 29th of May 2024, PT academic, and you are right now sitting on our Exam Pe Charcha episode number 40 plus. So we have done a lot of episodes right now with a lot of people, and we have got the best global results. So Praneeth, you cleared your exam on 29th of May 2024. It was your first attempt. Listening 90, reading 83, speaking 88, writing 90, overall 89 on 90. And this is your result card for the reference of everyone. So Praneeth, मुझे speaking के बारे में बताएं, आपका speaking में क्या आया? Sir, speaking में read aloud 7 थे और repeat sentences 10, describe image 3 थे और 3 के 3 ही paragraphs आए थे और read lecture 1 था और answer short questions 5 और 4 extra questions trial questions आए थे. Trial questions आए थे. Overall speaking का level क्या था आपका? Overall speaking sir easy था लेकिन थोड़े से repeat मुझे लगे tough. तो आपको moderate ही मान के चले फिर speaking को? Yes sir. Okay. So I want some tips on speaking. So tell us some tips about speaking. Speaking just सब practice ही है सारी. पहले तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब मेरे 50s आते थे मेरे, मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट में स्पीकिंग में, मतलब 60 बहुत ओकेजनली 60s वाली लाइन में आते थे, लेकिन विद प्रैक्टिस हो गया सारा कुछ ठीक हो गया. तो आपने रिपीट सेंटेंस में क्या ट्रिक यूज किया? सर रिपीट सेंटेंस में जैसे आपने मास्टर क्लासेस में बताया था, मुझे भी सेम वही प्रॉब्लम्स आ रही थी और आपने बताया तो सर वही टिप्स फॉलो की थी. So it worked very well. उससे प्रैक्टिस करके. Right. Let us talk about your next section now. So writing was your next section and you got summarized written text. You said it was tricky. Yes, and sir. let's say that was there, it was easy and you had done it before in the classes also. Yes, sir. People in the future will work for few hours as compared to now. Share your opinion, describe the reasons. This is quite easy, I believe. And Yes, your sir. overall level of the writing was easy. Am I right? Yes, sir. इसके टिप्स बताएं जी, आपने प्रैक्टिस कैसे करी, क्या किया, टिप्स बताएं हमें सारे. समराइज रिटन टेक्स्ट तो सर मैंने यहाँ से ही जो हमारी वेबर्स वाली आईडी है मॉक वाली, वहां से ही सारे प्रैक्टिस किए थे और ऐसे मैम ने काफी सारे, तन्वी मैम ने काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किए थे पूरी क्लास के साथ ही. राइट. तो उससे बहुत हेल्प हुई थी ऐसे में. आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? टाइपिंग स्पीड सर इतनी ज्यादा फास्ट भी नहीं है लेकिन ठीक है, Accurate. नॉर्मल. You write Yes, very sir. accurate. That is the most important thing. Okay. So now let us go to our next part that is called as reading. So tell us about our reading. जी बताएं जी, रीडिंग के बारे में क्या आया आपको रीडिंग में? रीडिंग में सर रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 5 थे, एमसीक्यूज मल्टीपल 1, रीऑर्डर पैराग्राफ्स 2 थे और फिल इन द ब्लैंक्स 4 एंड एमसीक्यू सिंगल 1. तो ओवरऑल रीडिंग भी आपको इजी लगी? यस सर, काफी इजी थी. लोग तो बहुत रोते हैं, वोकैबुलरी नहीं याद होती, प्रॉब्लम आती है बहुत रीडिंग में, तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी स्टार्टिंग में? तो सर रीडिंग मेरी ना स्टार्टिंग से थोड़ी ठीक ही थी, मतलब कभी फुल भी आ जाते थे या फिर मतलब 4-5 तो आ ही जाते थे ब्लैंक्स में. ओके. तो आपने क्या किया फिर, प्रैक्टिस कैसे करी? सर प्रैक्टिस जैसे ग्रुप में हमारे कॉलोकेशंस वगैरह वोकैबुलरी मैम रोज करवाते थे और कॉलोकेशंस वगैरह ग्रुप में मैम ने भेजी हुई थी, तो वहां से ही सारी सारी मतलब याद की थी. कहीं से आप याद कर रहे थे? राइट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर लिसनिंग. एंड लिसनिंग में बताएं जी हमारे ऑडियंस को क्या था लिसनिंग में? लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट 1 था, एमसीक्यूज मल्टीपल 2, एमसीक्यूज सिंगल 1 थे, ब्लैंक्स भी 2 थी और हाईलाइट करेक्ट समरी 2, मिसिंग वर्ड्स भी 2, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स भी 2 थे और राइट फ्रॉम डिक्टेशन 3. तो ये भी आपको इजी लगा? यस सर. इसके टिप्स क्या थे?
स्पेशली डिक्टेशन के मुझे बताएं, जिससे लोग बहुत कल पे पड़े हैं डिक्टेशन का। आपने सर डिक्टेशन डिक्टेशन इजी आई थी, मतलब ना लेंथ उनकी काफी मतलब सही थी, ऑलमोस्ट 8 to 10 वर्ड्स की डिक्टेशन थी, और वर्ड्स भी क्लियरली मतलब पता लग रही थी, स्पीड भी नहीं थी इतनी। फिल इन द ब्लैंक्स जो आई थी ना, उनकी बहुत ज्यादा स्पीड थी, और जो ऑडियो थी रिकॉर्डिंग वाली वो भी डिस्टर्ब थी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन डिक्टेशन वाली ठीक थी। डिक्टेशन वाली ठीक थी, चलो अच्छा रहा आपका ओवरऑल। अब ओवरऑल आपका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? आपको कैसा? ओवरऑल एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा था मेरा। काफी अच्छा। अगर यस आपको टिप्स देने हो स्टूडेंट्स को, हमारे जो सुन रहे हैं सारा आपका शो एग्जाम पे चर्चा, तो उसके बारे में क्या बोलेंगी आप? सर, उसके बारे में यही कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, प्रैक्टिस के साथ ही सारा कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, वंडरफुल। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कहाँ पे जाना है आपने? क्या करना है आपने? तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान किया है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। That is wonderful. Wishing you all the best for your future endeavors. All the best to you. And thank you for joining our program. थैंक यू सर। All the best. थैंक यू।